Hello everyone, let's start with today's lecture, History of the World Costume. So these are our learning objectives and various aspects of the history of costumes, get knowledge about the historical costumes, and you can take the inspiration of your own garments, like if you want to make the theme and you're finding any inspiration from the ancient historical, take the inspiration. So today's topic we will be covered today is 19th. So let's start with the clothing of the 19th century. So we have read that in the 18th century there are lots of garments which we have seen, which are very exaggerated, which are very elaborated skirts in the women and long coats in the men. So there is a very dramatical change in the costumes of the 19th century. So in the starting there are very less very less type of techniques they have been using in their garment. So in this era the introduction of the machines has introduced a lot, like the power looms, the weaving techniques, their electricity, their dyeing and stitching, sewing techniques. They have increased and made so many inventions in their garments, and the textile industries has also developed their techniques to make the garments. So for the men's they have introduced the ditto suits which are ready to wear the clothing, like men's have the same coats and same fabric of the pants. So these are called the ditto suits, which has been introduced in the 19th century. So the black color is the main color in the attire of the male dresses. The black color they used to wear most in the men's garment, and tuxedos are today's you can say today's garment. In today's language you can see that ditto suits have tuxedos and the dark suits. So introducing during the 19th century would have lasting impact on the fashion on both men and women. Starting as a sturdy work pant, blue jeans would become the most important or most influential American fashion trends. In American fashion trends you can see the blue jeans has introduced, that we will describe later on. So नेक्स्ट स्लाइड इज, जो नेक्स्ट गारमेंट है वो आपका क्या है जो इंट्रोड्यूस हुआ है, क्राइनोलाइन. क्राइनोलाइन क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि हम अंडर स्कर्ट्स में जो देखते हैं पहनती थी जो लेडीज़ थी, वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था. 1800s मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था. They also used to wear the farthingales. We have also read in the 18th century the structure they used to wear under the main skirt is farthingales. Now this is the variation of the farthingales is crinoline. Crine means hair, horsehair, and the line means the alignment of the skirt. They used to give the alignment to their shape to their outer garment. तो उसको इन्होंने क्राइनोलाइन हुप्स बोला हुआ है. द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ मेटल का एक स्ट्रक्चर बना था जो कि इनकी बॉडी को शेप देने के लिए, बहुत स्टफ रखने के लिए स्कर्ट्स को यूज़ हुआ था. कुछ क्राइनोलाइंस जो है वो 4 yards के थे जो मेजर किए गए थे, जो बॉटम में ये गारमेंट पहना जाता है, स्कर्ट्स के साथ पहना जाता है. बट ओनली 2 or 3 women can live in or walk in a room. जब एक रूम के अंदर सिर्फ 2 या 1 ही फार्थिंगेल्स जो है वो बनता था या चलते थे, बैठते थे, बिकॉज उनको पहनने में इतना ज़्यादा, उनका जो एरिया है स्कर्ट्स का वो इतना ज़्यादा था
कि उनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता था उनको वॉक करने के लिए। सो आपके जो हूप क्रेनोलाइन है वो कभी कभी इनकी जो स्टील्स की रिंग्स हैं वो स्टील की रिंग्स बनती थी, साइज़ जो है इनका बहुत बड़ा होता था और ये टेप के साथ जो है फैब्रिक टेप के साथ इसको सिक्योर करते थे। बहुत ज़्यादा साइज़ में बिगर था और आप इसको एक लाइट वेट हुप्स भी इसको आजकल जो है 19th सेंचुरी में बनाया जाता था। पहले क्या था, ये बहुत ज़्यादा बड़े फार्दिंगेल्स, बड़े स्ट्रक्चर के साथ जिनको फार्दिंगेल्स बोला जाता था वो बनते थे, जो बहुत ज़्यादा हैवी थे, कभी कभी वुड भी यूज़ करते थे टू गिव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। बट दे स्टिल हैविंग द सेम प्रॉब्लम which they are facing in the 18th century. They are facing the same problem in the 19th century because the structure is so rigid, structure is so stiff, बहुत ज़्यादा stiff उनका जो है structure था। Next slide is, next garment is the bloomers. What are the bloomers? These are the type of long pants जो कि gathers इसके पड़े होते थे ankle पे, ankle के पास, ये जो women के द्वारा पहना जाता था। और this is can be used as an outer garment or as an undergarment. For the women used to wear under the dresses because they think they can do their activities easily, such as bicycling. They are feel very comfortable doing the activities like playing tennis or traveling or bicycling, so they wear the bloomers under their dresses. So bloomers are also at the same time known for the freedom of the movement than the tight corsets. They used to wear the tightly fitted corsets to reveal their body shapes and trail the skirts that most women wore. So they used to wear the bloomers with their main garment. Though the bloomers were also not widely accepted as an outer garment in the 19th century, so they wear the as an undergarment. Men's also wear the and as a upper garment as of the bloomers. So the acceptance of for the ladies in the 19th century of the bloomers is only by the as an undergarment, not as a upper garment, because they feel comfortable, they feel an freedom and ease and movement for the movement, so they used to wear it with the different while doing the different activities. So instead of petticoats they used to wear the next garment is bathing costumes. Bathing costumes are so popular because their trend has been changed now. They used to go on the beaches for the time pass or for the leisure time. The men's are allowed to become a bit freedom and modestly they covered their legs with the with the jerseys or with the knee length trousers. So breeches, they used to wear the breeches in the 18th century. Now the for the bathing costumes they have also wear the bloomers or the bathing costumes, like they have belted their dress. Women used to belted their dress in and bathing suits have the three parts, like knee length bloomers and they wear with the dark stockings, tight dark stockings. Though the new suits offered more freedom of the movement, they were still made up of the heavy wool. As the century progressed, the sleeves become shorter. Sleeves become shorter by the 19th century. Women too wore the sleeveless bathing dresses. So women's sleeves has been changed in the 19th century. They become shorter, and we can see in this picture the blue dress she has wear with the stocking, red dark stockings, and the collar is for the cotton. With the cotton fabric they made her a collar with the white cotton stripe with the gathers. So this ruffled collar or the gather lace collar is also called the Betsy.
this type of collar has introduced, named as a Betsy. नेक्स्ट गारमेंट इज़ द ब्लू जीन्स. एक ब्लू जीन्स है, बहुत ही फेमस हुई थी इन द अमेरिकन एंड दे ऑल्सो गिव देयर नेम एज लीवाइस. सो लीवाइस आज बहुत ज़्यादा फेमस एक गारमेंट है ब्लू जीन्स के लिए. ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इन द 19th सेंचुरी. एक ये ब्लू जीन्स जो है ये कब पहनी जाती थी? जब वर्कर्स के द्वारा पहनी जाती थी, बिकॉज दे feel comfortable in this blue jeans, because only the farmers or the workers or the these type of जो मेंस हैं वो ये इसको वेयर करते थे. तो once the worn by those who did heavy manual labor, jeans become one of the most popular and the common clothing item in the 20th century also. तब ये क्या था, ये जो फैब्रिक है ये एक जैकॉब नाम के किसी बंदे ने बनाया था, जैकॉब डेविस एंड द मर्चेंट लेवी स्टोरस ने ये मिलके जो ब्लू जीन्स है वो इन्वेंट करी थी इन 19th सेंचुरी. और ये कहाँ बनी थी? फ्रांस के नाइम्स शहर में बनी थी. और ये एक बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल फैब्रिक माना गया था तब का, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न वे में इसको दिखाया गया था और इसको एक नाम दे दिया गया था अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स ने, सर्ज द नाइम्स. डेनिम को पहले सर्ज द नाइम्स के नाम से जाना जाता था. तो इसने क्या किया, इन्होंने आफ्टर सम time period in the mid of the 19th century they used to call it as a Levi's. आज इसको Levi's के नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है. Levi Strauss उसका नाम था जिसने इन्वेंट किया था. then they changed the name into the Levi's. After the World War II, the blue jeans became the part of the official uniform of the Navy and Coast Guards. They become so popular, the jeans became so popular, so as the off-duty leisure clothing also wear this garment, and the other soldiers also wear this blue jeans in 19th century. Next garment is the ditto suits. Ditto suits are introduced for the men. This is the very dominant for the western men dress clothing. This is also called and featured as a jacket, vest and trousers made from the same fabric. जो एक same fabric है जो वो use किया गया था आपका तीनों garments जो है वो बनाने के लिए, एक ditto suit को complete करने के लिए, which includes the 3 elements like jacket, vest and trousers. These are also new style, also categorized by the loose fitting jacket and hung straight from the shoulder to the waist or bottom to the hip. Informal type of the dressing and generally worn by the businessmen, travelers, and this you can also see the men's used to wear in the streetwear. Streetwear में भी ये काफ़ी पहना जाता था because it becomes so less cheap and very less expensive. So every middle class of the working man can wear this. इस एरा को बोला जाता था डांडीज. डांडीज कुछ इस एरा को बोला जाता था जब ये डिटो सूट्स आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, बिकॉज डांडीज वो लोग थे, वो मेन थे जो कि न्यू और लेटेस्ट ट्रेंड्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा उसको अपनाते थे, उसको ज़्यादा उन्होंने केयरफुली अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया था अपनी क्लोथ्स के ऊपर, और लेटेस्ट ट्रेंड्स को वो ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाता था. तो उन लोगों को डांडीज बोला जाता था, उस एरा को भी डांडीज बोला जाता था. एंड इट बिकम सो पॉपुलर, जो अमेरिका और आपके यूरोपियन मेन है इसको ज़्यादातर लोग सूट्स में ही दिखते थे. एंड द नेक्स्ट मूव टू द ड्रेसेस. द ड्रेसेस ऑफ द women हैज़ वेरी मच चेंज्ड नाउ. अब आफ्टर द मिड ऑफ द 19th century, women used to wear a dresses like they worn in the we have seen in the ancient Greeks. जब ancient Greeks हमने पढ़ा था चैप्टर,
तो उसमें क्या था, जो लेडीज़ थी उनके गारमेंट्स थोड़े थोड़े इसमें ऐसे ही दिखते हैं जैसे तब दिखते थे, रोब ए शेमीज। दिस वॉज अ गारमेंट जो बहुत ही ज़्यादा स्लीक था, बिल्कुल वैसा ही गारमेंट अब इन्होंने स्टार्टिंग से अब ये पहना स्टार्ट कर दिया है। दैट इज़, दिस गारमेंट इज़ मेड अप ऑफ द मसलिन, सिल्क फैब्रिक से जो है ये गारमेंट बनता था और बहुत ही ज़्यादा स्लीक फैब्रिक था, बिकॉज ये बॉडी की शेप जो है फैब्रिक जल्दी ले लेते हैं। तो ये कौन से कलर में बना था, दे स्लीव्स बहुत ज़्यादा इनकी शॉर्ट हो गई थी, लाइट कलर या वाइट कलर्स, लाइट पिंक, बिल्कुल पेस्टल कलर्स में हमें ये ड्रेसेस देखने को मिलती थी इनकी। एंड इनके लॉन्ग ड्रेसेस होती थी, नीचे रफल्स, दे यूज टू अटैच द रफल्स विद द ड्रेसेस and bows and other ornaments like laces and pleats and other heavy embellishment they used to wear with their dresses. अब after that, after this garment, they also used to wear the heavy ruffled garments in the evenings. बहुत ही ज़्यादा रफल जो गारमेंट्स है ये इवनिंग में वो भी पहनने लगे थे. This is introduced newly dresses in the 19th century. Slide that is about the fur. Fur is the newly introduced garment in the 19th century. अब fur में क्या है? They used to wear the every embellishment, every material they want to wear with the fur. कोई भी अगर इनको क्लोथिंग पहननी होती थी किसी भी टाइप की तो उसमें ये फ़र अटैच करते थे. बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था जब ये इसकी पॉपुलैरिटी हुई थी 1960s में. कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे हैट्स में, कोट्स में, ड्रेसेस में और अदर एसेसरीज में. लाइक इनकी जो पॉकेट बुक है, पॉकेट बुक क्या है, इनकी जो पर्स है जो इनका, वो एज अ पॉकेट बुक इनको बोलने लगे थे. बिकॉज इनके जो गारमेंट्स में जो मैंने आपको पहले कॉर्सेट बताया था कि कॉर्सेट में एक इनकी कंसील्ड पॉकेट होती थी जिसमें ये परफ्यूम रखती थी अपनी, तो इन्होंने वो हटा के वो जो कंसील पॉकेट्स है वो इसमें नहीं बन सकती थी बिकॉज द फैब्रिक वॉज सो डेलिकेटेड. बहुत ज़्यादा इनका फैब्रिक है, लाइट वेट था, मसलिन का बना होता था. तो उसमें ये कंसील पॉकेट उसमें कॉर्सेट में नहीं अटैच करके इन्होंने एक पॉकेट बुक जैसा एक पर्स रखा जिसमें ये अपने परफ्यूम्स या और चीज़ें रखती थी. सो फर भी इनको पॉकेट को छोड़ के मतलब जो इनकी पर्सेस थे उसमें यूज़ करने लग गए. कोट्स में पूरा कोट्स इनका जो है फ़र का होता था, हैट्स इनकी फ़र से डेकोरेट करी जाती थी. तो इनकी जो बाइंग और सेलिंग है यूरोपियन इकनॉमी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक ट्रेड बन गया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो आपके यूएस में बहुत ज़्यादा लेट 18s में स्टार्ट हो गया था. 18th सेंचुरी में एक जॉहन जैकब एस्टर नाम का एक जो आदमी था वो मिलियनियर बन गया था, एक सिर्फ एक फ़र का ट्रेड करके, सिर्फ इसकी शिपिंग करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता था आपके फ़र को. और ये हर एक ड्यूरेबल गारमेंट में, हर एक ड्यूरेबल कॉस्ट्यूम में ये फ़र यूज़ करते थे. सो फ़र बिकम एन वेरी कॉमन गारमेंट इन दिस एरा. सो एक डिज़ाइनर थी मैडम इसिडोर पैक्विन. इसिडोर पैक्विन एक डिज़ाइनर थी जो सिर्फ एक डिज़ाइनर फ़र की नहीं थी, उसने ये जो ट्रिम्स हैं गारमेंट्स में, जो इसके जो मेथड है डेवलप करने का कि इसको स्मूथ कैसे किया जाए, इसको एनिमल की स्किन को के फ़र से जो उतारा होता है उसको कैसे स्मूदर किया जाए, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी इसने इंट्रोड्यूस करी थी इस डिज़ाइनर ने, पैक्विन ने. सो सम ऑफ द people don't like some people began to protest the deaths of the animals for the clothing. So कुछ जो है लोग ऐसे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने लगे थे कि डोंट किल द एनिमल्स फॉर योर क्लोथिंग. सो they started make a duplicate. So this is also the part of the women costume called the पेलिसे. पेलिसे एक गारमेंट था जिसका मतलब है मेड ऑफ द स्किन, जो कि स्किन से बना होता था. जैसे कि एक केप का फ़र था जो वेलवेट और सैटिन से बना हुआ था, जिसकी लाइनिंग भी फ़र की से ही डेकोरेट की गई थी और ट्रिमिंग्स पे भी इनको
फर से डेकोरेट किया गया था। पेस्ले एक आउटर गारमेंट है, एक बहुत ज़्यादा कॉमन गारमेंट है जो लेडीज़ और चिल्ड्रन इनको ज़्यादातर पहनती थी। कॉम्बिनेशन है इसका क्लोक के साथ, कोट जैसा है ये क्लोक और एक कोट का कॉम्बिनेशन है, एक कोट जैसा ही पहनने को दिखाई देता है जब ये एक नॉर्मल अपनी ड्रेस के ऊपर, कॉर्सेट के ऊपर ये इसको वियर करती थी। एंड इनके जो फ्लैप है, जो कॉलर्स के फ्लैप है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज थे, बहुत ज़्यादा बड़े फ्लैप्स थे विद अ हुड्स। किसी कॉम्बिनेशन जो है इसका कोट्स और क्लोक का, इसके साथ हुड्स भी अटैच की जाती थी। इसकी जो लेंथ थी वो वेरी करती थी हिप तक या फिर बिल्कुल आपके एंकल नी तक, जहाँ तक इनकी मेन गारमेंट ड्रेसेस होता था। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। हर साल इनकी जो है लेंथ जो है वो चेंज होती थी। सम ऑफ द स्लीव paisley were fitted more closely to the body, usually made of the muslin, sheer cotton fabric or other material, light muslin, silk. Now G-got आपके sleeves. G-got sleeves are also called the Lego mutton sleeves. What are the Lego mutton sleeves? ये कुछ ऐसी sleeves है जो ऊपर से बहुत लूज है. After that, after the elbow, the sleeves get very fitted. बहुत ज़्यादा फिटेड है। इनकी जो इसका जो नाम है वो इन्वेंट किया था, वो कैसे रिजेंबल किया था कि ये बिल्कुल शीप की लेग जैसी दिखती है, तो इसको लेग ऑफ मटन, लेगो मटन या लेग ऑफ मटन स्लीव बोला जाता था, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा लूज होती थी, वाइड होती थी और बॉटम तक आते आते ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती थी। विद अ लार्ज पफ ऑफ द मटीरियल एट द शोल्डर, गिजॉट स्लीव tapered sharply at the elbow to fit closely along with the lower garment. Lower garment के साथ ये आते आते इनकी जो स्लीव्स है, एक जो पफ स्लीव्स है बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, इनकी जो बस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई है, और इन्होंने जो इनकी वेस्ट है उसको स्क्वीज़ कर दिया गया है विद द टाई करके रिबन को। जो कॉर्सेट है इनको ऐसे ही बिल्ट होता था ताकि इनकी जो फिगर है वो ज़्यादा एम्फेसाइज हो, ज़्यादा रिवील हो। कैसे? एक आवर ग्लास शेप देके इनके गारमेंट्स जो है वो बनाए जाते थे। अब इट्स वेरी कॉमन इन द लेट 20s एंड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ये जो स्टाइल है 1890s में, और ये जो स्लीव्स है फिर ये चेंज हो गई थी इन द लेगो मटन इन 19th century. Women were supposed to be wide at the shoulder and bust, narrow at the waist and wide at the hips. उनकी जो हिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा शेप में दिखाए गए, फ्लाउंस दिखाए गए, राइट। सो लास्ट गारमेंट इज़ द कश्मीरी शॉल्स। हमारा जो इंडिया है वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी शॉल्स के लिए। कश्मीर जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। कहाँ पे? आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है कश्मीरी शॉल्स जाती थी, बहुत ज़्यादा फैशन में आ गई थी। दे यूज टू वेयर द सेम कलर ऑफ द शॉल्स विद देयर मैचिंग विद देयर गाउन्स। जो इनके जो गाउन्स हैं, जो इनकी जो ड्रेसेस हैं, इवनिंग ड्रेसेस हैं, उनके साथ ये बिल्कुल सेम कलर का जो है कश्मीरी शॉल्स पहनती थी। तो ओके, कश्मीरी शॉल्स वर मेड अबव द फाइन कैशमीर, पश्मीना एंड शैतूस वूल के साथ। ये जो है सॉफ्ट हेयर ऑफ द तिब्बतन गॉड्स के साथ, इसकी जो है उनके जो गॉड्स के जो हेयर है सॉफ्ट, उसके साथ ये जो शॉल है वो बनाई जाती थी। और कहाँ मिलती थी ये जो गॉड्स है? हिमालयन माउंटेन्स में मिलती थी। इंडियन वुमेन स्पन द फ्लीस इनटू द यार्न। अब जो हमारी जो टेक्निक है, आपने टेक्सटाइल में पढ़ा होगा, टेक्सटाइल सब्जेक्ट में, कि जो वूल है वो फैब्रिक जो है वो कैसे बनता है। जो इंडियन आपके जो यार्न्स हैं, जो फ्लीस गारमेंट है, जो एक फ्लीस है वो कैसे डेवलप होती है, उसको स्पन करके 2 और 3 ईयर्स लग जाते हैं उसको वीव करने में, इस शॉल को। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है इस शॉल को बनाने का। अनडाइड शॉल्स रेंज्ड इन द कलर्स। जो अनडाइड शॉल्स हैं उसको कलर किया जाता था ब्लू में, आपके ब्राउन में, ग्रे में और लाइट क्रीम में, लाइट कलर्स में इसको डाई किया जाता था आफ्टर वीविंग विद द सॉफ्ट हेयर ऑफ द तिब्बतन गॉड्स, राइट।
कैशमेयर एंड पश्मीना शॉल्स भी इसको बोला जाता है, इसको फाइन यूज़ किया जाता है इसके अंदर। इसके जो पैटर्न्स थे वो कैसे थे, इसके जो पैटर्न्स थे उसमें फ्लावर्स थे, उसमें बूटीज़ थी, जो नेचर में बूटीज़ होती है, जो लीव्स होती है वो थी, उसको बूटीज़ बोला गया, पेजले बोला गया, एक अम्बी को, ठीक है। और इन शॉल्स का नाम दिया हुआ है कानी शॉल्स। द शॉल्स विद एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न्स विल ऑल्सो कॉल्ड द अमली। अब जो ऐसे पैटर्न्स के जो एम्ब्रॉयडरीज जिसमें ऐसे पैटर्न्स बने हुए थे शॉल्स में, उसको अमली भी बोला जाता था, राइट। सो दीज वर द गारमेंट्स जो कि हमें इसमें देखने को मिले हैं 19th सेंचुरी में। बहुत ही ब्यूटीफुल गारमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं और सबसे ज़्यादा इसमें फेमस हुई है जो है आपके ब्लू जीन्स एंड द क्राइनोलाइन फॉर द लेडीज़ एंड टैक्सीडो सूट्स फॉर द मेंस। ये जो है ये चीज़ें करी गई है 19th सेंचुरी।